यहाँ पे हम इवेल्युएटर्स को मैं खुद पर्सनली ट्रेन करता हूँ एंड आई टीच देम द टेम्पलेट्स दैट आई हैव taught many of the rankers and I always tell them to think in that way. Your copy will be checked by people who have actually scored good in GS. ऐसा नहीं है कि मेंस नहीं दिया हुआ और आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं. तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे. रीजन बीइंग हम PYQ बेस्ड क्वेश्चन फ्रेमिंग करते हैं कि भाई जो PYQ में आया है उस बेसिस पे हम उसको आंसर कर रहे हैं. राइट स्मार्ट है, राइट स्मार्ट लाइव नहीं है, राइट स्मार्ट रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है. प्लस उसके बाद टेस्ट है, 20 टेस्ट है. आफ्टर द टेस्ट मेरे 20 आंसर राइटिंग के सेशंस हैं जिसमें मैं आपको आंसर राइटिंग एक्सपर्ट बना दूंगा, वो मेरी गारंटी है. और उसके बाद इवैल्यूएशन है, लाइव भी है, ट्रेडिशनल भी है. लाइव इज मोर ऑफ अ 1-to-1. हेलो एवरीवन. नाउ बेसिकली in this video I would like to show you the evaluation process at Saarthi IAS in the mains test series program. Because see, the idea is that what is the use or purpose of joining any test series, be it X, Y and Z, is to get scientific evaluation which works, which helps you improve your answer writing. Because we all know that next 3 months is the answer writing phase, and if you're not doing answer writing right, and if you're not getting the right evaluation, then there is a great chance that you might miss the next attempt, because the base of answer writing is built in these 3 months. And on that note, we have launched the final batch of mains test series for 2026 before prelims. After prelims there will be a batch, but before prelims, right? And I will not explain a lot about the features of the batch, but I will tell you how evaluation works at Saarthi IAS under my guidance, right? So, सबसे पहले, if we talk about the core philosophy of evaluation at Saarthi IAS is that we want you to give you outcome-oriented suggestions. So it's not like that कि we'll just tell you भाई ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है. ऐसा नहीं है. We want you to actually develop those templates, right? And give you those suggestions that you can implement. Plus these suggestions will help you improve the marks in the next test. ठीक है ना? और plus the evaluation strategy is based on the personalized feedback वाला system. कि भाई ऐसा नहीं है कि एक क्या होता है कि यूजली मैक्सिमम जगह द इवैल्यूएटर्स आर प्रोवाइडेड विथ मॉडल आंसर्स, एंड इफ यू हैव रिटन आंसर विच इज मैचिंग द मॉडल आंसर यू विल गेट मार्क्स, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे. यहां पे हम इवैल्यूएटर्स को मैं खुद पर्सनली ट्रेन करता हूं एंड आई टीच देम द टेम्पलेट्स दैट आई हैव taught many of the rankers, and I always tell them to think in that way. तो मॉडल आंसर एक बेस है, ठीक है, बट डोंट रियली गो ओनली विद व्हाट इज देयर इन मॉडल आंसर, बिकॉज देयर आर मल्टीपल वेज टू राइट अ गुड आंसर, राइट? तो सबसे पहले जो हमारा मेजर पिलर है इवैल्यूएशन का, फर्स्ट इज बिल्डिंग द राइट इवैल्यूएशन टीम. दैट्स अ मस्ट. आई मीन इफ यू डोंट हैव गुड पीपल चेकिंग एंड रिव्यूइंग, देन डेफिनेटली मैं कितना भी यहां बोल दूं, बट on the ground we will deliver a substandard product. Secondly, evaluation, recruitment and training. Third, evaluators performance monitoring. Fourth, dynamic and innovative evaluation methods. Fifth, hybrid evaluation mode, right? Sixth, multi-tier copy review mechanism. When we say that, it means that the copy is checked by an evaluator, reviewed by the reviewer, and then finally it is seen by the head of the copy evaluation. And कुछ copies को मैं भी randomly check करता रहता हूं. So 4 layers of copy evaluation is there. Then we also benchmark against topper scripts. Basically, the idea is that our team
thoroughly goes through the toppers answer copies, and based on that, we try to make the evaluation as simple, or we try to make the suggestions as close to what toppers are writing. Then student centric assessment approach, that is very important. कि एक student, let's say, he's innovating, he's trying for a different style, so we do appreciate that. We don't have a very rigid way of checking कि ये नहीं लिखोगे तो आपको marks नहीं मिलेंगे, right? Similarly, we provide personalized feedback aligned with the UPSC standards, right? Plus, we have a proper redressal team, because जैसे ही आपकी कॉपी चेक होगी, आपके पास ऑप्शन आएगा रेटिंग देने का, आउट ऑफ 5 हाउ मेनी स्टार्स यू आर गिविंग. और अगर 5 स्टार से या 4 स्टार से कम रेटिंग आप देते हो तो यू विल रिसीव अ कॉल फ्रॉम अवर टीम कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट? वो ऐसा शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा. इवन इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द चेकिंग, द ग्रीवियंस रिड्रेसल इज वेरी वेरी रिजिड. हमारे यहाँ बिल्कुल सिंपल है. हर एक इवैल्यूएशन के बाद आपको फीडबैक का आएगा. यू गिव द फीडबैक. इफ द फीडबैक इज लेस देन 4, you will receive a call, right? Then efficiency in delivery, we do check very fast, 4 5 6 days mein we check the copy. ठीक है? Now if we talk about who evaluates your copies or matter, so we have a very rigorous hiring process. The evaluation manager has given 2 to 3 interviews, right? And under her, there are reviewers who again have scored very well in GS. Below them are the evaluators, many of them are rankers. Many of them were my students also. So they will check your copy based on the templates that I have taught those rankers, right? And most of them are interview given, right? So very, very talented and strong team. And your copy will be checked by people who have actually scored good in GS. ऐसा नहीं है कि मेंस नहीं दिया हुआ और आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, right? Similarly, there is a comprehensive training program. I also regularly train the evaluators. Mudit sir does it for ethics. So we have a very, very, we have a comprehensive. Then there are head of evaluation who actually do this training every week. So जहाँ पे भी gaps हैं, we try to improve. And we have standardized evaluation templates. बहुत clear है, बहुत objective भी है, right? Plus we have a outcome oriented approach. As I've said, कि we just don't highlight the problems. We give you the suggestion कि अगर ये intro weak है तो better intro क्या हो सकता है, right? So that's how we do it. Then if we talk about, I'll just show you the sample evaluation training document. If you see all these, we have a proper clear instructions, right? Avoid excessive marking like too much underlining or tick marks. Carefully read the directive word. That's very important. We tell that to students. We also tell that to evaluators कि आप mark करो, justify है, analyze है, elucidate है, right? Then ultimately all these things, if you talk about, refrain from using emotion stars or any informal symbols, right? Ultimately, if answers appear to be copied from model solutions, then focus feedback mainly on structure, presentation, and language, right? Then, each page should carry at least one meaningful comments, right? Then you have to avoid writing generic comments, right? Plus, you have to give them specific case studies, specific examples wherever they are missing. ठीक है? Plus, you don't have to just mention fair, decent. If it's fair, decent, mention how to further improve that, right? Similarly, हम लोग का टेम्पलेट बेस्ड इवैल्यूएटर ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट है जिसमें हर एक सब्जेक्ट का हमने बना रखा है कि इंट्रोडक्शन में कितने टाइप के टेम्पलेट्स और इंट्रोडक्शंस आप यूज कर सकते हो. तो एक इवैल्यूएटर के पास आइडिया रहता है कि अगर इसमें से कोई भी है तो मार्क्स दे देंगे. ठीक है, उसमें भी उनको बता रखा है कि सबसे अच्छा इस टाइप का है, फिर सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये. तो बेस्ड ऑन जो मैं
टेम्पलेट सिखाता हूं, उसी बेसिस पे आंसर्स हैं। मेन बॉडी के देखो वेरियस टेम्पलेट्स हैं, वे फॉरवर्ड के, कंक्लूजन के, तो हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टेम्पलेट्स हैं। जैसे देखो इंट्रोडक्शन में पॉलिटी का कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है, रिपोर्ट बेस्ड है, कंपैरेटिव है, सिग्निफिकेंस बेस्ड है। तो ये डॉक्यूमेंट हर एक इवेल्टर के पास होता है, एंड बेस्ड ऑन दैट दे चेक। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल एंड रिव्यू, तो पहली बात तो वी हैव टू स्टाइल ऑफ कॉपी चेकिंग, ये और किसी टेस्ट सीरीज में नहीं होगा। हमारे यहाँ लाइव इवैल्यूएशन भी है, जहां पे आप वो इवैल्यूएशन कम मेंटरशिप है, राइट? और आई विल शो यू द क्लिप ऑफ दैट ऑल्सो, हाउ वी डू दैट 1-to-1 इवैल्यूएशन, हाउ वी डू दैट लाइव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो लाइव इवैल्यूएशन हमारे यहाँ होता है, और जहां पे एक मेंटर, जहां पे एक इवैल्यूएटर और स्टूडेंट बैठता है, और वो सामने उसको बताता है कि ये गैप्स हैं और ऐसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स काइंड ऑफ अ मेंटरशिप ओनली, 1-to-1 मेंटरशिप ओनली। सेकंड इज ट्रेडिशनल चेकिंग, जहां पे आपकी प्रॉपर कॉपी चेक होके आएगी। तो दोनों ऑप्शन हैं आपके पास, राइट? सेकेंडली देयर इज मल्टी टायर कॉपी रिव्यू मैकेनिज्म। मैंने कहा ना 4 स्टेज है, 4 स्टेज है, शायद कहीं भी 4 स्टेज नहीं होगा। Then benchmarking against topper scripts. So we ultimately give the suggestions based on the analysis of the topper copies. ठीक है? Similarly, as I've said that if I give you the sample, so this is the traditional copy checking that we do. तो आप अगर देखो यहाँ पे, तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में क्लियरली बताया गया कि योर 4 लाइन्स कॉन्स्टिट्यूट अ सेंटेंस, प्लीज रिड्यूस सेंटेंस लेंथ टू मेक एक्सप्रेशन मोर क्लियर। ठीक है, प्लस यहां पे देखो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी, आर्टिकुलेशन इशू है, एग्जैक्टली पॉइंट आउट किया है। ठीक है, प्लस यहां पे अगर आप देखोगे सजेशंस दिए गए हैं, तो ऊपर आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करी गई है, नीचे आपके सजेशंस दिए गए हैं। देखो लास्ट में आप देखो सजेशंस भी दिए गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इफ यू सी मैक्रो कमेंट्स भी हम दे रहे हैं, हम लोग मैक्रो कमेंट्स भी दे रहे हैं। तो देखो आपको प्रॉपर एग्जांपल दिया गया है, सजेशन दिया गया है, प्लस अलोंग विद दैट हर एक आंसर के साथ आपको एक मैक्रो कमेंट मिलेगा कि भाई देखो यू नीड टू वर्क ऑन स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन। इंट्रोडक्शन में 20-30 मार्क का, सेट द कॉन्टेक्स्ट, यू कैन यूज सिग्निफिकेंस और सुप्रीम कोर्ट बेस्ड जजमेंट। फॉर एग्जांपल यू कैन कोट जस्टिस HR खन्ना's स्टेटमेंट वेयर ही हाईलाइटेड द एंड्यूरिंग नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बॉडी में भी उसको बता दिया कि इस तरह से हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं, हेडिंग 2 हमने बता दिया, और कंक्लूजन भी हमने बता दिया उसको। तो आपको हर एक आंसर के साथ माइक्रो कमेंट भी मिलेगा और मैक्रो कमेंट भी मिलेगा। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी चेक द कॉपीज। ठीक है, सिमिलरली हर एक चेक्ड कॉपी के साथ आपको मैक्रो कमेंट मिलेगा, और ये मैक्रो कमेंट अगर आप देखोगे तो बहुत डिटेल्ड हो गया। हमने मैक्रो कमेंट्स को 8 बेसिस पे 8 डायमेंशंस में ब्रेक कर रखा है। पहला इंट्रोडक्शन प्रोफिशिएंसी, डिमांड अंडरस्टैंडिंग, कंटेंट डेप्थ एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वैल्यू एडिशन एंड इनोवेशन, स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज एंड आर्टिकुलेशन, कंक्लूडिंग एबिलिटी और पर्सनलाइज ओवरऑल फीडबैक। तो अगर आप देखोगे ये सारे जो हमने 8 पैरामीटर्स बनाए हैं आपको क्लियरली बताएंगे कि फर्दर इंप्रूवमेंट कैन बी डन इन इंट्रोडक्शन 375। ठीक है, प्लस यू हैव डिस्प्लेड गुड अंडरस्टैंडिंग, बट यहां पे इन क्वेश्चंस में हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो क्लियरली हमने क्वेश्चन नंबर पॉइंट आउट कर रखा है कि यहां पे हम इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली लाइव इवैल्यूएशन, तो ये बात थी हमारी ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन की। लाइव इवैल्यूएशन में 2 वे इंटरेक्शन होता है, जहां पे मेंटर और मेंटी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, राइट? एंड आई विल शो यू the clip of that. So here is a sample clip of our live evaluation. Again, your introduction is very good. You have started with the historical context, है ना, कि कैसे वो DRSCs आई एग्जिस्टेंस में। देखिए इन क्वालिटी आंसर्स ना वी डोंट हैव सम डायग्राम्स, है ना, कि ऐसे स्पेसिफिकली जैसे एथिक्स में मिल जाएंगे, थर्ड पेपर में मिल जाएंगे, बट इसमें नहीं होते। तो इसमें हम कैसे उस चीज़ को कंपेंसेट कर सकते हैं, इसके बाद हम इसका ना जो भी प्रोविजंस हैं या ये कैसे होती है, इनका स्ट्रक्चर है, उसको मेंशन कर सकते हैं। ओके, जैसे यू कैन सी कि DRSCs देयर आर 24 DRSCs, और फिर ऐसे फ्लो चार्ट टाइप बना दो। 8 अंडर राज्यसभा,
एंड 16 अंडर लोकसभा, यू कैन गिव वन एग्जाम्पल, और इसको एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर में फिट कर दो, तो दिस विल एक्ट एज योर डायग्राम, है ना। ओके तो थोड़ा सा हम उस जो डायग्राम वाली चीज पॉलिटी में नहीं है उसको कंपेंसेट कर सकते हैं इन फ्लो चार्ट से। ओके, यू हैव गिवन हेडिंग ऑलरेडी, है ना, टीआरएससी एज मिनी पार्लियामेंट, तो यू आर नॉट सपोज टू राइट सेंटेंस, लिंकिंग सेंटेंस आल्सो, ओके, तो यू कैन स्किप दैट ओके सेंटेंस, ठीक है, गुड, बट एग्जाम्पल्स आर मिसिंग, है ना, योर पॉइंट्स आर गुड बट यू हैव नॉट substantiated these points. For example, when you are saying na in-depth scrutiny, you can give example of जो DPDP Act आया है ना, Digital Public Data Protection Act, ठीक है, तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन आई थिंक 2019, तो फिर वो जब कमेटी के पास आता है तो कमेटी हैज रिकमेंडेड मैनी सजेशंस, तो उन सजेशंस को लाने से बेटर गवर्नमेंट समझती है कि हम एक नया ही बिल ले आए, तो उसको वापस ले लेती है पुराने बिल को, और एक न्यू बिल इंट्रोड्यूस होता है और वो डीपीडीपी एक्ट बनता है। एंड ऑल्सो जैसे यहाँ पे है बजटरी कंट्रोल, तो ये तो एकदम नॉर्मल सा पॉइंट है ना, तो यू कैन जनरेट एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि बजटरी कंट्रोल ऑफ जैसे डिफेंस की डीआरएससी है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, तो रिलेटेड टू डिफेंस, तो वो इससे रिलेटेड जितने भी बजट होगा उसको कंट्रोल कर रही होगी या उसको रिकमेंड कर रही होगी, या फिर हम कह सकते हैं डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए रिकमेंड कर रही होगी, है ना। दिस इज हाउ यू कैन जनरेट सम एग्जांपल, है ना, एट सम प्लेसेस ओनली, है ना, ऐसा नहीं कि पूरे पेपर में करना है, but at some places you can go with this format also. But and also you have substantiated with the data, है ना, but Yes. for credibility of your data you have to mention source, ठीक है, जैसे ये PRS या ADR का डेटा है ना, तो you have to mention, Yes, you have to just write कि dash PRS और ADR, तो इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा वर्ड्स आपके यूज हो रहे हैं, ओके, but it will provide the credibility of your data, getting ना, again Okay, ma'am. you have given solution, है ना, reform, Yes. that is, yeah, you have merged the solution with the conclusion, ठीक है, तो ये पॉइंट हम कर सकते हैं, बट एज अ लास्ट रिजॉर्ट यू हैव टू यूज दिस, ठीक, कि बिल्कुल टाइम नहीं बचा, स्पेस नहीं बचा, तो यू कैन मर्ज योर वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन, लेकिन अगर थोड़ा भी पॉसिबल हो तो हम उसे सेपरेटली ही देंगे, ओके, तो जैसे Okay. बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं देने, you just draw this sunrise type diagram, yes, way forward, and just mention 3 words here, है ना, तो जो जो Okay. एक लाइन में आपके वर्ड यूज होंगे उतने ही वर्ड इसमें यूज होंगे, लेकिन क्या है कि इट विल एक्सप्लिसिटली शो योर सॉल्यूशन, है ना, वे फॉरवर्ड, Okay. तो उससे क्या जाता है कि एग्जामिनर के माइंड में जाएगा कि यू आर अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। इन कंक्लूजन यू कुड गो विद सम कोट, ठीक है, Okay. एक वुड्रो विल्सन का कोट है, उससे उससे जा सकते हो कि व्हेन कांग्रेस इन सेशन, है ना, मैं यहाँ पे वुड्रो विल्सन लिख देती हूँ, you will Yes. get the idea, you will get that quote from Google, है ना, when Okay. Congress in session it is in exhibition, तो ऐसा कुछ quote है, when Congress is in committee room it is actually at work, ठीक है, Okay. तो and you can prepare these conclusion in advance, जैसे कमेटी पे क्वेश्चन आना ही आना है ना, अगर आप PYQ देखो तो उसमें मेजरली क्या है कि हर साल एक कमेटी पे क्वेश्चन आता है, तो यू कैन फिक्स दैट कोड फॉर कमेटी वाला क्वेश्चन, है ना, कि आप फिक्स कर दो कि जब भी कमेटी वाला क्वेश्चन कुछ भी आएगा तो आई विल एंड विद द वुड्रो विल्सन कोड, है ना। Okay, ma'am. So if you have seen the clip, that's how we do it, right? Clearly बता रहे हैं कि कैसे प्रॉब्लम है, कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। Then student centric support, right? Very important कि कोई भी प्रॉब्लम हो, स्टार रेटिंग सिस्टम है, ईमेल आप आपको कर सकते हो, फॉलो अप कॉल हम करते हैं अगर कोई भी आपको दिक्कत है, तो इट्स अ वेरी डिसेंट्रलाइज सिस्टम, राइट। तो 8 वर्किंग डेज के अंदर हम रिटर्न करते हैं, यूजली तो उससे पहले ही रिटर्न कर देते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली ये तो हो गया हमारे इवैल्यूएशन वाला पार्ट। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस और मॉडल आंसर्स। इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कि देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो डायरेक्टली हमारे यहां से आए हैं। मेजर टीचिंग्स ऑफ महावीरा डायरेक्टली सेम वर्ड टू वर्ड हमारे यहां से आए हैं, ठीक है। देन नैनो टेक्नोलॉजी डायरेक्टली यहां से आया है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ हरप्पन डायरेक्टली जो है हमारे यहां से आया है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। रीजन बीइंग हम पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन फ्रेमिंग करते हैं कि भाई जो पीवाईक्यू में आया है उस बेसिस पे हम उसको आंसर कर रहे हैं।
अगर आप देखोगे ये हमारे कुछ फीडबैक्स हैं जो हमारे क्योंकि आफ्टर द कॉपी चेक यू आर गिविंग द ऑप्शन कि आप दो, तो 5 स्टार देखो, 5 स्टार, थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्रिहेंसिव इनसाइट, एक्सीलेंट एक्सपीरियंस एट सारथी, बेस्ट अमंग ऑल, थैंक यू फॉर giving me comprehensive insights on my answer script, it will be helpful the same, right? Feedback provided help me to improve my answer and give me incentive to work harder. तो इस टाइप के आपको हम क्वालिटी देते हैं, ठीक है? ये देखो सारे ऐसे ही हैं, right? Although it was the first test, but I'm satisfied with my marks and I know I have to improve a lot. So all these good things, we have inculcated. ठीक है? अब अगर हम फीचर्स की बात करें तो राइट स्मार्ट है, राइट स्मार्ट लाइव नहीं है, राइट स्मार्ट रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, प्लस उसके बाद टेस्ट है, 20 टेस्ट है। आफ्टर द टेस्ट मेरे 20 आंसर राइटिंग के सेशन हैं जिसमें मैं आपको आंसर राइटिंग एक्सपर्ट बना दूंगा, वो मेरी गारंटी है। और उसके बाद इवैल्यूएशन है, लाइव भी है, ट्रेडिशनल भी है। लाइव इज मोर ऑफ अ 1-to-1, ठीक है? तो ये सारे आपके एस्पेक्ट्स हैं और इस तरीके से आपका शेड्यूल है। सो इफ यू टॉक अबाउट द राइट स्मार्ट शेड्यूल, तो ये है, इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे राइट स्मार्ट के। और इफ यू टॉक अबाउट द टेस्ट शेड्यूल, तो टेस्ट शेड्यूल जो हमने ऐसा रखा है कि इफ यू टॉक अबाउट द टेस्ट शेड्यूल, तो 26 अक्टूबर से फर्स्ट टेस्ट है एंड वी हैव स्टार्टेड विद एथिक्स, देन वी विल गो टू GS2, देन वी विल गो टू GS3 एंड देन विल गो टू GS1। GS1 हम जनवरी में लेके इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप प्री कम मेंस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है? सो आई थिंक द कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 26 से आपका टेस्ट है और 28 से आपके राइट स्मार्ट है, ठीक है? सो आंसर लिखना स्टार्ट करो। अगर आपने नहीं लिखना शुरू किया है, प्लीज आंसर लिखना स्टार्ट करो। ये 3 महीने में हमारी गारंटी है, हम आपको आंसर राइटिंग एक्सपर्ट बना देंगे। दिस इज द कमिटमेंट दैट मी एंड माई टीम आर गिविंग टू यू, ठीक है? थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।